Hello and welcome everyone to the post market analysis and market view session for tomorrow by MentorBox. I hope you all have a profitable day today. So my name is Nikhil Doshi. I am a trader and mentor at MentorBox by StocksBox. Over the past 12 years, I have been trading stocks, futures and options using technical analysis. So without further ado, let's start today's video. So this is the Nifty chart and this is tradingview.com. Nifty is closed at 73 point down, below 17,400 at 17,392. Sensex is down around 175 point down today at 59,288. And Bank Nifty was on the upside about 397 point rallied today at 40,307. So let's see the market, what happened today. So today after a gap down open entry, अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट खोल लेता हूँ, I'll just hide this. You can see over here, after a smaller gap down open entry, market was sharply fall in first 5 minutes. After that, it was recovered back and made a high around this level, that is 17,450, 1.60. और वहां से again it has started to fall over here and it become volatile over here and it made a low of 17,299. 17,300 का लो भी ब्रेक कर दिया. And over, if you just check the daily chart, so this is the daily chart. जो बजट डे का जो लो था, that was roughly around here at around 17,000. What was the low? 17,353. वो लो भी ब्रेक कर दिया था in the morning. And after that, sharp recovery came after it made a low of 17,299. So this was a scene over here on the market. के market यहाँ पे 299 का low बनाया और after about 1 p.m. or 1:30 p.m. it has moved up and it has given a close above 17,400 level at 17,406. So this is the closing on the post market. The closing at 3:30 was around 17,392 over here. And if you can just check over here at the post market closing, market has given close above for 17,406. Let's double confirm what is the closing. So let's open moneycontrol.com so we can get the exact post closing price. It is showing, yeah, 17,392 is the क्लोजिंग आफ्टर पोस्ट मार्केट. 3:40 को मार्केट एडजस्ट होता है कि 3:40 को जो भी प्राइस 3:30 बजे क्लोज होता है उसके अलावा मार्केट एडजस्ट होता है. सो मार्केट हैज गिवन अ क्लोज बिलो 17,400 एट 17,392. नाउ लेट्स सी ओवर हियर कल क्या कर सकते हैं मार्केट में. यहाँ पे अगर मैं डेली चार्ट ओपन करता हूँ ऑन द निफ्टी and if I'll see over here, I have already drawn the trend line. Since past videos I have shown you this. कि market was in the trend line support, market is in the trend line support. तो यहाँ पे आज ये trend line break कर दिया नीचे की तरफ and it has given you a close below that. But that doesn't mean कि immediately selling चालू हो गई है. Trend line के below तो close दे दिया, but the important level जो budget day का low था, that was 17,353. उसके नीचे market को close देना था for the short trend. So overall वहां पे अभी तक close आया नहीं है. So it is taking a support over there as well. Plus one more support it is taking, that is daily moving average. अगर हम standard daily moving average देखते हैं तो daily moving average 200 daily moving average के support में है market. If you can just check over here, this is the orange line is on the day, it is a daily moving average. और आप check करोगे, so market crossed that daily moving average on the downside. And at the end, it has closed above DMA, that is daily moving average 200. इसके ऊपर support लिया है. So some bounce can be expected on the Nifty tomorrow. So कल के लिए market में क्या कर सकते हो आप? कल market में आप long कर सकते हो if the first 15 candle positive बनता है. If you are new, I'll just explain you one more time. आपको करना क्या है? On the tradingview.com आपको सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी करके सर्च करना है. If once you search the Nifty, you'll get the Nifty chart. Okay, this is the Nifty chart. इसमें आपको करना है टाइम फ्रेम चेंज. आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे तो you'll find the 15 minute over here. तो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे 15 मिनट.
and you will find the chart of the 15 minute. That means every candle is for 15 minute. 15 मिनट की पहली कैंडल क्लोज होगी लगभग 9:30 के आसपास. 9:30 को ये क्लोज होते ही आपको चेक करना है कि ये कैंडल पॉजिटिव क्लोज हुई है या नेगेटिव क्लोज हुई है. तो अगर पॉजिटिव क्लोज होती है then I'm interested for the long on the Nifty tomorrow with the day low stop loss. तो पहला कैंडल देखना है. जैसे आज ये नेगेटिव कैंडल था, so it was not a long sign over here, but नेगेटिव कैंडल था. It was falling sharply on the morning. तो 15 मिनट की कैंडल कल अगर पहली कैंडल 9:30 बजे पॉजिटिव खुलती है, then look for the Nifty future long, Nifty call option ATM. आप लगभग 17,400 के आसपास का कॉल खरीद सकते हो, 17,450 का कॉल खरीद सकते हो फॉर द मंथली एक्सपायरी और अ वीकली एक्सपायरी फॉर द निफ्टी टुमारो. Tomorrow is the Tuesday, so you can look after for that this on the basis of market on the first candle. इन केस अगर पहला कैंडल नेगेटिव बन जाता है कि सुबह सुबह में मार्केट में सेलिंग आता है वापस और नेगेटिव बन जाता है, सिंस इट इज टेकिंग अ सपोर्ट ऑन द DM at 200, simple moving average 200 पे सपोर्ट ले रहा है. So what you can do over here, I have written it over here कि आपको अगर फर्स्ट कैंडल नेगेटिव मिलता है तो आप लॉन्ग कब कर सकते हो कि अगर मार्केट 17,450 के ऊपर जाएगा तो. I'll just tell you the level. आपको यहाँ पे एक 17,450 का एक लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे रफली अराउंड हियर. करेक्ट. आज का जो हाई था उससे ऊपर थोड़ा रफली हियर 450 के आसपास इट वाज रिट्रेसिंग ओवर हियर. तो 17,450 के आसपास अगर मार्केट आता है और 15 मिनट का कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाता है, देन यू कैन गो फॉर द लॉन्ग ऑन निफ्टी. अभी इसमें शॉर्ट कब कर सकते हो? इन केस कल वापस 200 डीएम में ब्रेक करता है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि कल मार्केट नीचे आएगा. इन केस तो शॉर्ट कब कर सकते हो? जब ये 17,300 का लेवल वापस ब्रेक करेगा. जो आज का लो बना है दैट इज 299 के नीचे अगर निफ्टी ब्रेक करता है 17,300 के नीचे और 15 मिनट का कैंडल आपको चेक करना है. 15 मिनट का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होता है, then you can go for the short on the Nifty for the intraday with the same candle high का stop loss. जैसे yesterday I have given you a trade, that is on Friday I have given you a trade on the Nifty. Nifty long only about 17,650. तो आज तो 650 गया नहीं, नीचे ही खुला मार्केट. ओके, तो वो तो एंट्री नहीं बना. और शॉर्ट ओनली बिलो 17,430 if 15 minute candle closing below that, not above but below that. तो यहाँ पे अगर चेक करते हैं आज का, अगर निफ्टी चेक करते हैं तो दिस इज द 15 मिनट कैंडल. तो हमने क्या चेक करना था कि 430 के नीचे वो क्लोज होगा. दैट इज रफली अराउंड हियर 430 के नीचे अगर वो कैंडल क्लोज होती है, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द शॉर्ट रफली अराउंड हियर, ये वाली लाइन पे. इफ आई जस्ट चेंज दिस कलर, ओके, लेट्स मेक इट ब्लू. ये जो यहाँ ब्लू वाली लाइन है इसके नीचे निफ्टी क्लोज होता है, देन आई कैन लुक आफ्टर फॉर द शॉर्ट. तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूं कि कैंडल्स अगर चेक करता हूं तो थ्रू आउट द डे ओपनिंग के बाद इट वाज मूविंग डाउन बट इट इज बिकम साइडवेज एंड आफ्टर दैट ओवर हियर टुडे, नॉट दिस वाज यस्टरडे थर्सडे स्टार्ट, वी आर सीइंग द टुडेज मार्केट. तो आज सेकंड कैंडल आप चेक करोगे तो सेकंड कैंडल हैज गिवन यू शॉर्ट बिलो, दैट इज क्लोज बिलो 17,430. ये 430 के नीचे क्लोज हुई ये कैंडल. तो यहां पे आपको शॉर्ट कर सकते थे एट अराउंड 17,405 ऑन द स्पॉट निफ्टी. आपको एंट्री कैसे करना है? यू नीड टू टेक अ एंट्री ऑन द फ्यूचर चार्ट. तो फ्यूचर चार्ट में सेकंड कैंडल चेक करते हैं. सो दिस वाज द सेकंड कैंडल टुडे एट अराउंड 17,507. द शॉर्ट वाज डेवलप्ड हियर and the stop loss was around 17,556. And after that you can see the movement. The target was us for it, that is 17,353. जो budget day का low था वो आपका target था. So you can see over here it was falling sharply, and as I have told you कि एक बार entry करने के बाद आपको stop loss लगाना है as per the candle high. उसके बाद stop loss जो trail करना है it is as per the PSR point. So you can see over here कि 5 मिनट में अगर PSR के पॉइंट देखता हूं, सो नेगेटिव कैंडल जब बनती है तब भी आपको PSR पे ट्रेल करना है. जैसे
यहाँ पे ओरिजिनल स्टॉप लॉस वाज वे हाई 17555। उसके बाद जब जैसे जैसे नेगेटिव कैंडल बनती है तो आपको ट्रेल करना है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव बना तो मैंने ट्रेल कर दिया, बट यहाँ पे जो लास्ट दो कैंडल देखोगे तो पॉजिटिव है, तो स्टॉप लॉस आपका यहीं रुक जाएगा एट 17517। उसके बाद वापस नेगेटिव बना, देन यू कैन स्टार्ट ट्रेलिंग अगेन एंड अगेन। यहाँ पे लास्ट ट्रेल था over here and you are out over there on the 5-minute chart. So you can see over here, I have written it over here on the Nifty future. The entry was developed on the first candle at 17,508. Stop loss was 555. Trailing was 426. 426 का ट्रेल था मेरा, तो 426 के आसपास it got triggered over there and it has given me a decent move of 4,100 rupees in a single lot. एक लॉट में 4,100 रुपए मिले। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट वापस से एक बार चेक करता हूँ, सो ओवर हियर द लास्ट ट्रेल वाज अराउंड हियर ऑन द 5 मिनट एंड इट वाज ट्रेलिंग एट अराउंड 526 के आसपास। द एंट्री वाज डेवलप्ड अराउंड सेकेंड कैंडल। ओके, सो वहां से आप चेक करोगे तो अराउंड रफली अराउंड यहाँ के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। सो 426 के आसपास इट गॉट ट्रिगर्ड, सो आई वाज आउट इन द ट्रेड एट 426. It has given me a profit of 4,100 rupees in the yesterday's trade. Now let's see over here. As I told you, कल क्या कर सकते हो निफ्टी में, कि निफ्टी अगर आज का डे लो दैट इज 17,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो शॉर्ट कर सकते हो। अगर लॉन्ग करना है तो पहला कैंडल पॉजिटिव बनेगा तो लॉन्ग कर सकते हो। इधर 17,450 के ऊपर कैंडल पॉजिटिव में क्लोज होता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो। दैट मीन्स कल कॉल ले सकते हो, दो पॉसिबिलिटी में पुट ले सकते हो, अगर डे लो तोड़ा तो पुट ले सकते हो। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ द मार्केट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑन द बैंक निफ्टी एज वेल। बैंक निफ्टी में कल क्या कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी तो आज पूरा दिन स्ट्रॉन्ग था, इट वाज मूविंग अप ओनली। अगर मैं डेली चार्ट चेक करता हूं बैंक निफ्टी का, so this is the daily chart and big positive candle that has been formed near the trend line को टच करके बड़ा पॉजिटिव कैंडल बना है। so I'm expecting a long on bank nifty, but I can look for the long only above, you can see over here I have written it over here, bank nifty long only above 40,500. why? because 40,500 is the crucial level। कल अगर गैप अप भी होता है तो यहाँ की ये जो बॉडी का हाई है वो बॉडी का हाई के आसपास से सेलिंग प्रेशर वापस डेवलप होता है। कल का दिन मार्केट में इंपॉर्टेंट है फॉर द ओवरऑल ट्रेंड। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव कैंडल क्रिएट करता है देन शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट बुलिश हो सकता है। सो वी नीड टू चेक दैट ओवर हियर कि बैंकिंग में लॉन्ग आ रही है तो कल सस्टेन हो पाता है कि नहीं। वी नीड टू चेक द एफआई डेटा एज वेल कि आज एफआई की खरीदी आती है, डीआई की खरीदी आती है या नहीं है। सो वी नीड टू चेक दैट एज वेल। अगर खरीदी आई देन वी कैन एक्सपेक्ट अ short covering on the market, छोटा सा bounce back you can expect it on the Nifty and Bank Nifty tomorrow. So look after for the same. So Bank Nifty में long कहाँ कर सकते हो, 40,500 का लेवल क्रॉस करके अगर पहला फर्स्ट कैंडल या उसके बाद का कैंडल 15 मिनट का कैंडल 40,500 के ऊपर क्लोज होता है then you can go for the long with the day low stop loss. So Bank Nifty फ्यूचर में भी लॉन्ग कर सकते हो, इवन आप लॉन्ग कर सकते हो इन द बैंक निफ्टी कॉल एज वेल। वीकली या तो मंथली एक्सपायरी का कॉल आप खरीद सकते हैं इफ यू हैव अ स्मॉल कैपिटल। और सेम कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीदते हो तो स्टॉप लॉस सेम आएगा कैंडल का लो, तो दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। सो बैंक निफ्टी और निफ्टी का लॉन्ग कर सकते हो। देन आई हैव फाउंड आउट अबाउट 6 stocks for you, 6 stocks today. First is Power Grid. So if you can just check Power Grid over here. So this is Power Grid. Power Grid मैंने आपको 1 या 2 वीक पहले बोला कि 218.40 या 218.50 के ऊपर क्लोज होता है तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी। So now after many days it has given you a close और with the bullish sign के साथ क्लोज दिया है, so it is showing me a breakout here. So बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है on Power Grid tomorrow। 225 रुपए का आपका टारगेट हो जाएगा on the Power Grid। So look for the long opportunity on Power Grid with the 15-minute positive candle। आपको उतना ही करना है, पहला कैंडल पॉजिटिव देखो और एंट्री कर सकते हो। हार्ड ट्रेडर्स, इफ यू आर अ रिस्की ट्रेडर, इमीडिएटली कल सुबह अगर पहला 5 मिनट का कैंडल भी पॉजिटिव बनता है तो लॉन्ग कर सकते हो। बट द कंफर्मेशन ट्रेडर, रेगुलर ट्रेडर यू आर, देन यू कैन लुक फॉर द लॉन्ग इफ 15-minute positive candle on the Power Grid।
Then we have stock number 2, that is 63 moons. Okay, so this is 63 technology. यहां पे आप चेक करोगे तो इट इज रिट्रेसिंग नियर 50% और हायर आई क्लोज दिया है यहाँ पे. इस कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग. तो एंगल्फिंग पैटर्न बना है. सो लुक फॉर द लॉन्ग ऑन 63 मून्स बट ओनली अबाउट टुडेज हाई क्लोजिंग. जो आज का हाई बना है, बिकॉज 2 दिन से जो हाई बन रहा है, हाई से सेलिंग आ रही है थोड़ी. तो कल अगर 63 मून्स लास्ट 3 डेज का हाई के ऊपर क्लोज हो गया, दैट इज आज का हाई अगर पकड़ लेते हैं तो 201, कल का हाई है 201.25, परसों का हाई है 201, तो 201.30 के ऊपर क्लोज होता है, देन यू कैन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ऑन 63 मून्स टुमारो. So I'll just write it down the figure as well, 201.30. Okay, 201.30 or 201.40 you can look after for the same. So 63 moons is a long. Then you have Tata Steel very quickly. So Tata Steel Limited check karoge, so it is moving down over here after it is got retraced. अगर यहाँ पे आप check करोगे, so it was retracing at 38.2% fib level. वहां से नीचे गया है, नीचे की तरफ का ब्रेकआउट दिया है. So now the target is open near about this zone. ये वाले जोन के आसपास का आपका टारगेट हो जाता है, between this zone to over here, यहां से नीचे. So overall 61% का टारगेट बता रहा है at 104.35 to 100% टारगेट at 98.30. बट ये लो का टारगेट पकड़ के चलो. So कल का टारगेट है, टाटा स्टील इज लुकिंग शॉर्ट बिटवीन टारगेट ऑफ 104.30 to 101. तो आप शॉर्ट कर सकते हो इसको 15 मिनट की कैंडल पे. अगर नेगेटिव कैंडल फॉर्म होता है तो करना है, बट इसमें मैंने एक लिखा हुआ है, रिमार्क लिखा हुआ है, चेक रिस्क टू रिवॉर्ड. कल अगर ये गैप डाउन खुल गया 104 के आसपास ही खुल गया, सो नॉट मच टारगेट विल बी लेफ्ट. सो अगर कल साइडवेज खुलता है या तो थोड़ा पॉजिटिव खुलता है, then you can look after for the short with the 15-minute negative candle. So Tata Steel is a short for you. Then you have Rain Industries. Rain Industries अगर चेक करोगे, so this is Rain Industries. इसमें भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है. So I can look after for the short on the 15-minute negative candle. इसका टारगेट रफली अराउंड 145.20 के आसपास है. This will be your target on the swing low over here. ये वाला आपका टारगेट हो जाएगा अराउंड हियर. सो लुक आफ्टर फॉर द शॉर्ट ऑन रेन इंडस्ट्रीज. देन स्टॉक्स फ्रॉम यस्टरडे, एशियन पेंट एंड अपोलो हॉस्पिटल. एशियन पेंट में आप लॉन्ग कर सकते हो. इट्स अ इनसाइडर कैंडल, इट इज फॉर्मिंग कंटिन्यूअसली, जो लास्ट लाइक फ्राइडे को मैंने आपको बताया था. सो वी कैन लुक फॉर द लॉन्ग, नॉट दिस लेवल. सो ओवरऑल पॉजिटिव कैंडल क्लोज हुआ है. आज आप चेक करोगे तो कल का हाई भी ब्रेक नहीं किया है, कल का लो भी ब्रेक नहीं किया है. तो व्हाट यू कैन डू, आज कल के हाई के ऊपर लॉन्ग कर सकते हो, कल के आज के लो के नीचे, नॉट यस्टरडेज लो, आज के लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हो. कल के हाई के ऊपर लॉन्ग, आज के लो के नीचे शॉर्ट. दैट इज लॉन्ग अबाउट 2762. 2762 के ऊपर बाय है विद द स्टॉप लॉस ऑफ द सेम कैंडल लो, एंड अबाउट बिलो 2710 इट्स अ सेल साइन. सो 15 मिनट का कैंडल चेक करना. 2762 के ऊपर है तो लॉन्ग करना, 2710 के नीचे है तो शॉर्ट करना. वेट फॉर द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल. देन लास्ट स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल. So this is Apollo Hospital over here. I'll just remove everything. इसमें check over here long above 4650, जो वीकली लेवल है, जो हायर लेवल साइड है. ये थ्रू आउट द वीक जब भी इसके ऊपर जाएगा लॉन्ग कर सकते हो. 4650 रफली here, एंड शॉर्ट बिलो 4396. तो आज नीचे गिरा है ये स्टॉक. ये स्टॉक मैंने आपको फ्राइडे को भी दिया था. तो शॉर्ट बिलो 4396, so roughly around here, correct, 4396 के बिलो. so there might be a chance कि कल ये 4396 ब्रेक कर दे और 15 मिनट का कैंडल अगर नीचे क्लोज हो जाता है, then look for the short opportunity on Apollo Hospital. और अगर क्लोज नहीं होता और सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जा रहा है, तो जब तक ये हायर लेवल तोड़ेगा उसके ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो. So this is it for the tomorrow stock. Now let's see yesterday's result. Yesterday I have given you about here on this 5. So Nifty के साथ I have given you about 9 recommendation yesterday.
out of 9 many trades has been executed today on the first candle, या तो मैं आपको जो level देता हूं उसके ऊपर. Out of this, Nifty we have already seen 4,100 का gain आया. Then L&T, NTPC and Reliance. Let's see quickly over here on the trade log. L&T has given me a loss over here. Long बनाया था 2137 पे, जिसका stop loss trigger हो गया. On the same next candle, very next candle, the second stock was NTPC, जिसका मैंने बोला था कि 172 के ऊपर क्लोज होगा तो बाय करना 15 मिनट में. तो 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई 172.80 पे. Stop loss was 170.50, but trail करते करते it got triggered and it has given me a small loss of 435 rupees in that on a risk of 2,000, and on a risk of 20,000 it has given me a like 4,300 का loss दिया वहां पे. Other than that, and Reliance first candle was positive, which was showing long. Let's see quickly. Reliance Industries का 15 मिनट का कैंडल चेक करना है. तो दिस इज 15 मिनट कैंडल. पहला कैंडल पॉजिटिव बना था, लॉन्ग डेवलप हुआ था, बट वो टिक नहीं पाया एंड इट हैज ट्रिगर्ड माय स्टॉप लॉस. आई वाज आउट विद द लॉस ऑफ 1995 इन दैट. देन यू हैव UPL लिमिटेड व्हिच हैज गिवन मी अ डिसेंट मूव प्रॉफिट. जो शॉर्ट बोला था मैंने आपको, व्हाट वाज द रीजन ओवर हियर UPL का? इफ यू जस्ट चेक, प्राइस इज रिजेक्टेड ऑन द डेली, शॉर्ट बिलो 736, 736 के नीचे 15 मिनट का कैंडल कब क्लोज हुआ? पहला ही कैंडल 736 के नीचे क्लोज हो गया. उसके बाद यू कैन सी ओवर हियर द बिग फॉल दैट हैज बीन डेवलप्ड एंड इट हैज गिवन मी अ प्रॉफिट ऑफ 2,300 rupees on a risk of about 2,600, not 2,300, or 26,000 it is made on a risk of 20,000. So under that we have in plus. Then IndusInd Bank, इसमें भी trailing stop loss got triggered, stop loss trigger हो गया. We are out at the stop loss, not the trailing, but stop loss trigger हुआ. So it has given me a loss of 2,000 rupees risk लेते हैं on a capital of 3 lakh, and we are taking a risk of about on a capital of 30 lakh, we are taking a risk of about 20,000 per trade. Then you have Tech Mahindra, which has given me a small profit. Tech Mahindra में movement आया, it was short over here, and after that trailing stop loss मेरा trigger हो गया, which has given me a small profit on a capital of on a risk of 2,000 at 419 rupees, and with the risk of 20,000 4199. So overall आज का रिजल्ट अगर देखते हैं from the Nifty and the stocks, it has given me a 770 rupees का small profit over here. So you can see over here trading summary में I have written it 770. इसमें अगर turnover check कर लेते हैं तो what was the turnover? You are in stocks box, so you have a 500 rupees subscription plan जिसमें brokerage आपको zero है until the turnover of 1 CR a month. Okay, so you can see over here what was the turnover today. The turnover was around 26 lakh over here. So no brokerage, 26 lakhs पे अगर tax भी calculate करते हो, so how much it went? 26 lakh into, you can calculate about 0.025%. इतना taxes में जाता है, 650 रुपया taxes में जाएगा. So net we are in a gain of 100 rupees today. So overall, what was the result for this month? This month we are in the gross profit of 48,586 with the risk of 2,000 per trade on a capital of 3 lakh, and we have about 4,85,000 rupees on a risk of 20,000 per trade, and we have earned about on a capital of 30 lakh. So overall, if we just check the result is on a about 16% gain already in the month of February, and tomorrow is the last day of the month. Monthly closing important हो जाएगा, कल का closing important है guys. So we are in gain of 16% this month. Last month 24%. Net हमने check किया था, that was 22% last month, and this month almost about 13 to 14%. We are in the gain over here. So this is it guys over here. So you can look after for more video of mine. You can just search, go to YouTube and just search for Stocksbox channel, STOXBOX. So this is Stocksbox. Under that you will find the video. आप वीडियो चेक कर सकते हो. कल के दिन मैंने फ्राइडे के दिन ये स्टॉक्स मैंने क्यों दिया था. You can check the latest video over here. Every day I am uploading this video between 2 to 7, which you can check out every day.
So that's all from my side today. So for more such ideas on stock market, make sure you subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular updates.